ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں اپیندر ناتھ اشک کی نظم فریاد، جو کہ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 8 میں شائع کی گئی، اسے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اپیندر ناتھ اشک کی نظم فریاد سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ فریاد۔ اداس اکیلی شامیں جب بڈھے کا دم گھونٹنے لگتی ہیں، اس کے تنہا کمرے میں وہ چپ چاپ اٹھتا ہے، اپنے آپ سے بتیاتا، لان کے پار جا کر سونی ویران بگیا میں آم کے نیچے بکھری اینٹوں پر، جہاں بچوں نے جانے کب کرکٹ کھیلنے کے لیے انہیں ایک دوسرے پر چن کر وکٹیں بنائی تھیں، بیٹھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ بگیا کو اپنے دل کا درد سناتا ہے۔ بڈھے کا سر تنے سے لگا ہے، آنکھیں بند ہیں، وہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں بدبدا رہا ہے، بگیا کو اپنے غم کا رازدار بنا رہا ہے کہ اچانک اس کے کانوں میں دھیمی گونجتی سی فریاد آنے لگتی ہے، ہلکے تیہے اور دکھ اور الہنے بھری آواز میں بگیا اس کے دل کا درد سنتی ہوئی اسے اپنے دل کا درد سنانے لگتی ہے۔ تم نہایت خود غرض ہو، بگیا شکایت کرتی ہے، اپنا دکھ سکھ غم و اندھو تمہیں دکھائی دیتا ہے، گھر والوں کی بے رخی سے تمہارا تن من جلتا ہے، ان کا بے نیازی برا توہین آمیز سلوک تمہیں کھلتا ہے۔ تم نے کبھی میری طرف بھی دیکھا ہے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کیا گزر گیا ہے میرے ساتھ ان چند گزشتہ برسوں میں، جب سے تم میاں بیوی نے اپنی گدیاں بیٹوں بہوؤں کو سونپ دی ہیں اور اپنے اختیار کھلندرے پوتوں کو ان مغرور متکبر بدتمیز لالچی اور لباڑیے لوگوں نے کیا درگت بنا دی ہے۔ میری آنکھیں کھولو، دیکھو، کیا میں اب بھی وہی ہوں جو تمہارے مہذب سلیقہ شاعر اور شائستہ باپ کے زمانے میں تھی، جسے پیڑ پودوں سے پیار تھا اور جو ہفتے میں 2 بار میرے آنگن میں جھاڑو لگواتا، پتے بڑھواتا اور ان میں آگ لگواتا تھا، یا انہیں کمپوسٹ کے گڑھے میں پھینکواتا تھا، درختوں کے جالے اترواتا، ان کے تھالوں میں پانی بھرواتا، دوائیں چھڑکواتا، ان کے پتوں پر سے کیڑوں کو دور بھگاتا تھا، اور کسی نئی دلہن کی طرح مجھے سنوارتا سجاتا تھا، کروٹن کے گرد آلود پتوں کو کبھی کبھی اپنے ریشمی تہبند کے چھوڑ سے صاف کر دیتا تھا، مالی کی غیر موجودگی میں خود گملوں میں پانی بھر دیتا تھا۔ کتنے بڑے بڑے خوشبودار مالدے اترتے تھے اس آم سے، برسات میں لال سفید دانوں والے انار، ہلکے پیلے اور سفید چتی دار امرود، اور یہ بڑے بڑے شریفے کاغذی لیمو، چکوترے، کٹہل اور روشوں میں گلاب، جوہی، بیلا، گملوں میں للی، سفید، گلابی، عنابی اور کتنی اقسام کا گیندا، پوٹیلاکا گول چبوترے کے گرد لگا۔ تپتی دوپہروں میں آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا،
छोटे छोटे सब्ज गुंबदों वाला कूचिया और सर्दियों में रंगारंग फूलों के पौधे, फ्लैक्स, परबीटा, नेस्ट्रेशम, पनीजी, डेजी और फख्र से सर उठाए गहरे लाल और गहरे पीले कॉक्सकॉम, और अपने लंबे नाजुक तनों पर तितलियों से उड़ते ईस्टर। तब मुझ पर ऐसा जोबन आता था जो तन में नहीं समाता था। तुमको कितना फख्र था मुझ पर। अपने दोस्तों को डीलिया और गुले दाऊदी के बड़े बड़े फूल और बहार पर आई रंग बरंगी बुगनबेलिया दिखाते थे। लॉन में कुर्सियां डालकर बैठते बतियाते थे। और अब तुम नीम तारीकी में खुरी ईंटों पर बैठे हो, आम के तने से पेट लगाए, और मैं महीनों से किसी ने मेरे आंगन को नहीं बहारा। कतरनों के किसी गोदाम में सड़ते मैले पीले कागज के टुकड़ों की तरह दरख्तों से गिरे हुए पत्ते टखनों तक ऊंचे हो गए हैं। जूतों के नीचे चरमराते नहीं कराहते हैं, और दरख्तों के थाले जाने कब से सूख कर गर्द से भर गए हैं। शाखों में बेशुमार जाले, वहां तक दिन के उजाले पहुंच नहीं पाते। जालिम कीड़े पत्ते खा गए हैं, पेड़ों को रोग लगा गए हैं। फल पकते नहीं झड़ जाते हैं, धरती पर बिछे पत्तों के नीचे धीरे धीरे सड़ जाते हैं। कहाँ है बेला, जूही और मोगरा की क्यारियां? वो गाय देखते हो ना, कितने सब्र से गेट के बाहर खड़ी है। अभी तुम्हारा कोई बेटा या पोता स्कूटर घड़घड़ाता आएगा, गाय को नहीं भगाएगा और गेट खुला छोड़ जाएगा, और वो घुन्नी गाय मेहंदी की बाढ़ रोनती हुई आएगी और मजे से फूलों के पौधे खाएगी। कैसी बेतुकी घास उगाई है मेरे जिस्म पर, कितने लंबे चौड़े पत्ते हैं उसके। बेझिझक बढ़ी जा रही है चारों तरफ, किसी चुड़ैल के लंबे काले बालों की तरह डरावनी। सीमल की उड़ती रुई जहां जहां गिरी है, खारजार पौधे उग आए हैं। शाम सवेरे गेट खुला देखकर बकरियां आती हैं, गुलाब और सीमल की शाखें चट कर जाती हैं। शाम को सूअर घुस आते हैं, रात भर धरती रोनते और हुड़दंग मचाते हैं। तुम्हारे घर वाले अब यहां नहीं आते, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे अब बड़े हो गए हैं। तुम हमेशा अपने टटम्मों में लगे रहे हो। तुमने इन्हें फूल पत्तों से प्यार करना नहीं सिखाया। वो टीवी पर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल के मैच देखते हैं या नित नए रोज चले आने वाले भोंडे जज्बाती और मज़ा खेज सीरियल। यहां आने का अब उनके पास वक्त नहीं है। मैं बागीचा नहीं, अब जंगल बन गई हूं। यहां अब गाय, बकरियां और सूअर आते हैं, या कभी कभार तुम आकर आम के तने से पीठ लगाकर खुरी ईंटों पर बैठ जाते हो और अपने आप बड़बड़ाते हो। तुम्ही को नहीं, मुझे भी अपनी मौत सामने नजर आती है। मेरा वजूद भी अब तुम्हारा साथी है। जब तक तुम हो मैं हूं, जैसे गए गुजरे तुम हो वैसी गई बीती मैं हूं। तुम ही नहीं बड़बड़ाते, मैं भी बड़बड़ाती हूं। फर्क यही है
तुम्हारा दुख मैं जानती हूं, मेरा दुख तुम नहीं जानते। शहर की आबादी अपने हुदूद से तजावुज कर गई है। मकान इतने पट गए हैं कि फटे पड़ रहे हैं। जमीन के दाम रोज बरोज आसमान पर चढ़ रहे हैं। शहर के खुले चौक, बाग, बागीचे उजड़ रहे हैं। तुम्हारे बाद यहां फल फूल लगाने के बजाय तुम्हारे बेटे पोते दौलत उगाएंगे। मेरे पेड़ काटकर मुझे नीलाम पर चढ़ाएंगे और मेरा वजूद मिटाकर यहां अजीमुशान फ्लैट बनवाएंगे। नागहां बुढ़ा चौंकता है, कोई जोर से उसका कंधा झंझोड़ता है। क्या हो गया है डैडी आपको? बड़ी बहू निहोरा देती है। सारे बंगले में यही जगह रह गई है आपके बैठने को, उठिए चलिए। लेकिन सुअर हमारी धरती रोंद रहे हैं। बुढ़ा उठता हुआ बड़बड़ाता है। कहीं नहीं सुअर, बहू झल्लाती है। खाना तैयार है, खा लीजिए। ढूंढ ढूंढ कर हार गई और आप आ बैठे यहां, कुछ हमारा भी ख्याल कीजिए। गायें, बकरियां, सुअर, कातिल, लुटेरे पेड़ पौधे काट देंगे। बुढ़ा बड़बड़ाता है और बहू के पीछे घसीटता चला जाता है। उजाड़ने दीजिए, क्या लेना है अब आपको इस धरती से? बहू झेंकती है। कितनी बार कहा है, मत पढ़ा कीजिए अखबार सुबह सुबह। सारा दिन बड़बड़ाते हैं। उम्र भर आपने अफसरी की है, मन माने ढंग से जिंदगी जी है। अब दूसरों को जीने दीजिए। बुढ़ा कुछ बड़बड़ाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं देती।